So we are doing the electrical version of damped SHM, and this is the circuit, electrical circuit. Further, this is resistance, okay, and we have an inductor here. Okay, so this is negative, this is plus. Voltage on resistance is I into R. R is the resistance, I is the current. This is plus of inductor and minus of inductor. Voltage on this inductor is L di by dt. Okay. Now, if we apply Kirchhoff's law, on this circuit, okay, so we'll get L di by dt plus I into R plus Q by C is equal to 0. This is the equation of voltage as per Kirchhoff's law for this LCR circuit. Okay, simplest. Now we know that current is dq by dt. Substitute this value of current in above equation, so it will become L di by dt. So d2 q by dt square. d2q by dt square, sorry, plus R times dq by dt plus q by c. Divide both sides by L. So it will simply become d square q by dt square plus R by L dq by dt plus 1 by LC q. So this is my equation of voltage in terms of charge for LCR circuit. Now, if I substitute omega naught square is equal to 1 by LC and damping factor R is equal to R by 2L. Why I am making this substitution? Specifically R, small r is equal to capital R by 2L, because I want to reduce this differential equation to the known differential equation whose solution is readily available in mathematics. We can import that solution directly from mathematics and apply it here. ठीक है, so जब मैं substitute करता हूँ और मैं इसको q को x put कर देता हूँ, ठीक है. So my equation becomes d square x by dt square plus 2r dx by dt plus omega naught square x is equal to 0. So this is my equation, reduced equation for LCR circuit. This equation is exactly similar to damped SHM equation. मैंने इसीलिए चार्ज को x put किया है, so that this equation will look exactly similar even in the form of notation as well. आपने x put कर दिया, so it will look exactly similar to that of damped SHM equation. ठीक है जी. So if we make resistance 0 in LCR circuit, ठीक है, जो डिसिपेशन फैक्टर है अगर हम उसको रिड्यूस कर दें, 0 कर दें, इट मींस आपका जो स्मॉल r है वो 0 हो जाएगा. So it means the second term will become 0 and you will simply get d square x by dt square plus omega naught square x is equal to 0. This is the equation of LC circuit. ठीक है, simple harmonic motion in electrical circuit. So what is the solution of this equation? Solution क्या था बच्चे इसका? X is equal to k naught a to r minus rt e to r b1 e raised to power r square minus omega naught square root whole multiplied by t plus b2 e raised to r minus r square minus omega naught square whole multiplied by t. ठीक है, so this was my solution. Now substitute the respective values of x, ठीक है, and r and omega naught square in this solution. So जब हम ये values substitute करेंगे बच्चे, so we'll simply get, just a minute. So we'll simply get q is equal to e raised to power minus r by 2l into t
in bracket we have b1 exponential, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ मुझे क्योंकि टर्म बड़ी आ जाएगी अंदर, r square minus 4 r square by 4l square minus 1 by lc square root, ठीक है जी, into t plus b2 exponential, it is minus r square by 4l square minus 1 by lc square root into t. So my equation solution of that differential equation reduces to this form when I resubstitute the values of x, omega naught and small r. ठीक है जी? Excuse me sir. हाँ नीश बोलो. Sir, can you repeat this? मैं गलत क्लास में चला गया था. बजे वही मैंने शुरू किया टॉपिक डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का और इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने वोल्टेज की इक्वेशन निकाली अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ एंड आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज. सो जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया और ये सब्स्टिट्यूशन फिर से मैंने इक्वेशन में अगर डाली, सो व्हाट आई गॉट इज द इक्वेशन ऑफ डैम्ड एसएचएम. सो अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशंस डिराइव करना स्टार्ट करूं और फ्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद I'll get same equation as that of damped SHM. So वही damped SHM का मैंने solution x की फॉर्म में लिख दिया. अब मैं जो सब्स्टिट्यूशन मैंने डाली हैं उनको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस सोल्यूशन में. ठीक है, ये आप वीडियोस में देख लेना. ओके सर. तो ये मेरे पास चार्ज की फॉर्म में सॉल्यूशन आ गए थे. इन damped SHM मैकेनिकल वर्जन x was the displacement, whereas in electrical version LCR circuit charge is the variable. ठीक है जी. Now in that mechanical version we have not found the value of b1 and b2. so इसके लिए अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है आपके पास, तो आपके पास दो ही इक्वेशन होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उतनी अगर इक्वेशन हो, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो हमारे पास दो कंडीशंस क्या होंगी बच्चे. एट t इज इक्वल टू 0 टाइम 0 पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे चार्ज? मैक्सिमम. सो Q नॉट. ठीक है. ऑल्सो ये पहली इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन, एंड सिंस एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज इज मैक्सिमम, तो करंट कितना होगा? 0. करंट इज dq नॉट बाय dt एंड Q नॉट इज कांस्टेंट, सो इट बिकम्स 0. ठीक है जी. सो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दो कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस इनको बोल दो आप. व्हेन यू अप्लाई दीस टू कंडीशंस आप यहां से इजीली b1 और b2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ठीक है जी. जैसे पहली कंडीशन अगर मैंने पुट की t इज इक्वल टू 0, तो ये e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी दोनों टर्म्स में. सो यू विल सिंपली गेट q नॉट इज इक्वल टू b1 प्लस b2. ठीक है जी. सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे सॉल्यूशन का और उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे और q को q नॉट पुट करोगे, you will get second equation. You have to solve them simultaneously and you can find the value of b1 and b2. ठीक है जी. So this is how we can actually find. जैसे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हम b1 और b2 को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, iota टाइम्स q कर रहे हैं या कोई भी वैल्यू उनकी ले रहे हैं. So in this LCR circuit we can easily find the value of b1 and b2 as well. So अगर न्यूमेरिकल भी गिवन है तो उसमें आप b1 और b2 की वैल्यू, कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन. ठीक है जी. अब इस, हाँ जी बजे. सर एक बार दोबारा रिपीट करना. बजे t इज इक्वल टू 0 पे ये जो हमारे पास सर्किट था LCR सर्किट, ठीक है, मैंने इसमें अज्यूम किया कि मेरा t इज इक्वल टू 0 पे ये चार्ज जो है इस पे मैक्सिमम है. मैंने कोई बैटरी लगा के इस पे मैक्सिमम इसको चार्ज दे दिया. सो मैक्सिमम चार्ज इस पे क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे Q नॉट. ठीक है, वही मैंने लिखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो उसका चार्ज क्या है, Q की जगह Q नॉट लिख दिया मैंने. Q मैक्स लिख दो या Q नॉट लिख दो, एनी नोटेशन. ऑल्सो अगर मैं करंट निकालना चाहूँ t इज इक्वल टू 0 पे, तो मुझे मालूम है करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पर अगर t इज इक्वल टू 0 पे मैं निकालना चाहूँ, मुझे मालूम है कि चार्ज तो मेरा मैक्सिमम है, और अगर किसी मैक्सिमम या कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आएगा. So current becomes 0. So ये दो मेरी conditions हो गई. I can easily use these two conditions for finding the value of B1 and B2. ठीक है? तो वो उसकी डिटेल में नहीं हम जाते. हाँ जी. पहली वाली क्वेश्चंस में तो B1 plus B2 को फेज डिफरेंस लेते थे आप. सेकंड वाली कॉम्प्लिकेट होगी ना.
सेकंड वाली कॉम्प्लिकेट होगी, उसको डेरिवेटिव लेके आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, सिंपल डेरिवेटिव लेना और कुछ नहीं करना उसमें। अब इसका 3 जैसे हमने सब केसेस किए थे मुझे, ओवर डैम्ड केस, क्रिटिकल डैम्ड, अंडर डैम्ड, तो हम वो इसमें इस सोल्यूशन में भी देखते हैं कि वो क्या केस होंगे, ठीक है जी। सो पहला केस हम करते हैं ओवर डैम्प का। ओवर डैम्प कब होगा बताइए? आपने मैकेनिकल तो कर लिया, मैकेनिकल वर्जन, इलेक्ट्रिकल वर्जन में ओवर डैम्प कब होगा? R square upon 4L square greater than 1 upon LC. यस, सो आर स्क्वायर डैम्पिंग वाला जो फैक्टर है, रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग आ रही है, लॉस आ रहा है ना एम्पलीट्यूड में, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC। और 1/LC क्या है बच्चे? Omega naught. इट इज ओमेगा नॉट, और आर स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर है, ये भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। इस केस में क्या होगा? ओवर डैम्प के केस में अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये सेम वैसा ही ग्राफ आएगा, Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, है ना। सो ये इसी तरह से इट विल टेक लार्जर टाइम और इंफिनिट टाइम इन ऑर्डर टू डिक्रीज टू जीरो। तो चार्ज जीरो नहीं होगा फाइनाइट टाइम में, जो टाइम हम एक्सपेरिमेंटली कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपका चार्ज जीरो नहीं होगा। दिस इज द केस ऑफ ओवर डैम्प्ड। सर मेरा एक जनरल डाउट है। हाँ जी बच्चे। सर आपने जो पीछे एलसीआर सर्किट बनाया था उसमें आपने रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। बच्चे वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे, किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, ठीक है। सो सेकंड केस हमारा है बच्चे क्रिटिकल डैम्पिंग का। क्रिटिकल डैम्पिंग कब होगी? क्रिटिकल डैम्पिंग इज देयर व्हेन रेजिस्टिव फोर्स Equal. इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर या 1/LC, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह से होगी, इट विल डिक्रीज एट ए फास्टर रेट। आपको एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिखनी है जैसे आपने मैकेनिकल वर्जन में लिखी है, ठीक है जी। सो ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। थर्ड केस अंडर डैम्पिंग, तो आपकी रेजिस्टिव फोर्स लेस है एज कंपेयर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो ये जो फैक्टर है लेस है ओमेगा नॉट स्क्वायर से। सो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा। सर ये काफी ज्यादा कम होता है या फिर मतलब कंपेरेबल होता है? क्या चीज बचा? मतलब ये जो लेस देन ले रहे हैं साइन, ये मतलब बहुत ज्यादा छोटा होगा उससे कि हम इसको निगलेक्ट कर नहीं सकते हैं या फिर? नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बच्चे। अगर आप फॉर एग्जांपल ये अंडर डैम्पिंग का केस जो मैंने लिया है, इसमें अगर आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट ही कर दोगे तो आइडियली तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। Yes, सो sir. मतलब आपको एक बैलेंस बनाना है। जैसे अगर बैलेंस ओमेगा नॉट स्क्वायर और रेजिस्टिव फोर्स बराबर हैं तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग होगी। अगर रेजिस्टिव फोर्स थोड़ी सी कम हो गई, इट मींस आपका जो है वो अंडर डैम्पिंग वाला केस हो गया। अगर रेजिस्टिव फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो ओवर डैम्पिंग वाला केस हो जाएगा। सर Yes, sir. सर हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें सबसे फास्टेस्ट डैम्पिंग किस में होगी? मतलब कि जैसे अगर हम कोई ऑसिलेशन कर रहे हैं तो उसमें मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में चेंज किस में आएगा? अच्छा आप बताओ मुझे कि ऑसिलेशंस अगर इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम बना देता हूँ। इफ देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस जीरो है, सो देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। विद टाइम कोई चेंज नहीं आ रहा, यस सर। है ना। अब आपने आपके हाँ क्वेश्चन जी। की दो कैटेगरी है मुझे कि आइदर हार्मोनिक मोशन रहेगी या नहीं रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो आपके दो केसेस हैं, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड, ठीक है। उसमें आप देख रहे हो नंबर 1 और नंबर 2 में इस ग्राफ में कि कोई भी वेरिएशन नहीं है, साइन फंक्शन को या कोसाइन फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा वो। अगर हार्मोनिकली वेरी कर रही है तो आपका अंडर डैम्पिंग वाला केस है, सो साइन फंक्शन की वजह से। तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड है ये इसमें एविडेंट तो अंडर डैम्पिंग के केस में ही है। तो अगर आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये फास्टर रेट पे डिके करेगा थर्ड नंबर के केस में, ठीक है। जितना अब फॉर एग्जांपल मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं R1 एंड R2 सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। सो अगर ये फॉर एग्जांपल ये मेरा R2 का केस है तो मेरा R1 का केस इस तरह से होगा और फास्टर डिके हो जाएगा। तो जितनी आपकी रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होंगी, ठीक है। और जैसे ही आपने आपका ये जो R1 स्क्वायर R स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर ये फैक्टर ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया, इस कंडीशन में ये ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हार्मोनिक मोशन करना ही बंद कर देगा,
ठीक है, सो जो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर मतलब ये एक ही एक्सपोनेंशियल डिके करेगा बस। एक ही टक्कर के साथ ही बंद हो जाएगा मतलब। हाँ, नहीं नहीं, Okay, एक टक्कर के साथ नहीं, ये सेकंड वाला, ये जो ऑप्शन है ठीक है, इसको फॉलो करेगा, क्योंकि आपका जो ये फॉर्मूला है यहाँ देखो क्यू वाला, इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो अंदर वाली ब्रैकेट अगर कंट्रीब्यूट करना बंद कर देती है तब भी ये एक्सपोनेंशियली डिके तो करेगा ही करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ठीक है अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड एल। ठीक है जी। और Okay, sir. जब आपने अंडर डैम्पिंग का केस लिख लिया बच्चे, तो हमने एक सोल्यूशन लिखा था मैकेनिकल वर्जन में, अंडर डैम्पिंग का केस लगाया था, जब हमने ये आयोटा की टर्म में हमने सॉल्व किया, तो क्या सोल्यूशन आया था हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आई थी? सर ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी आरटी साइन, हाँ आर टी साइन ऑफ क्यू टी ओमेगा, प्लस फाइव। हाँ QT प्लस 5, यस सर, ये आया था ना। यस सर, यही आया था। तो अब इस केस में हम ऑन द सिमिलर एनालॉजी क्या सोल्यूशन लिखेंगे कि Q आपका क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, ए क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, Q नॉट। ठीक है, सो ए की जगह मैंने Q नॉट लिख दिया। एक्सपोनेंशियल R की वैल्यू क्या मैंने पुट की थी, R/2L इंटू टी। ठीक है, साइन ऑफ QT प्लस 5। ठीक है जी। अब Q की वैल्यू क्या थी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर है 1/LC, इसको अगर मैं स्क्वायर की टर्म में लिख दूं, मुझे LC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ये आपका Q हो जाएगा। सम बुक्स यूज नोटेशन ऑफ ओमेगा एज वेल, सो डिपेंड करता है। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, अंडर डैम्प्ड के केस में। तो इसमें भी आपका जो एम्पलीट्यूड है विच इज Q नॉट, इस केस में चार्ज है, वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है एंड इज वेरिंग हार्मोनिकली एज वेल। ठीक है जी। सो इसमें आप साइन फंक्शन भी ले सकते हो, कोसाइन फंक्शन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पे अगर देखो आपने t इज इक्वल टू 0 पे आपका चार्ज मैक्सिमम था, ठीक है, तो आपको इसको साइन की बजाय कोसाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन। अगर आपने t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं किया, देन यू कैन यूज साइन फंक्शन एज वेल। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट LCR सर्किट। ठीक है बच्चे? हाँ जी बच्चे। सर इसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर को LC स्क्वायर क्यों लिखा, 1/LC स्क्वायर, 1/LC होता है ना? हाँ, LC आएगा। ठीक है, ओके सर। so I'll give a comparative analysis as well. So this slide shows the comparison of electrical version and mechanical version. ठीक है जी। So on left hand side we have electrical variables and on right hand side we have mechanical variables, one dimension. ठीक है जी। So यहाँ हमने देखा कि वेरिएबल था चार्ज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप। So Q और X ये वेरिएबल हैं दोनों। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास करंट था, ठीक है, और यहाँ मैकेनिकल में हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग है वेलोसिटी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V था, यहाँ पे फोर्स वो रोल प्ले कर रही है। रेजिस्टेंस यहाँ पे R था, वहां पे डैम्पिंग फैक्टर B या R, जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, सो सिमिलरली कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, है ना, करंट हम किस तरह लिख रहे हैं और वेलोसिटी किस तरह लिख रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट नोटेशंस, स्पेसिफिकली एनर्जी और इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो यहाँ हाफ Li स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C, यहाँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर और हाफ kx स्क्वायर। हाँ जी सर पोटेंशियल डिफरेंस और f of x को जो कंपेयर किया, मतलब लेकिन उनके तो यूनिट्स ही अलग होंगे। बस यूनिट्स अलग हैं। ये जो है आप इनको बोलते हैं
डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किए, इनकी यूनिट्स सेम होना जरूरी नहीं है, रोल वो सेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है, वो जो फोर्स लगा रहा है। सो दे आर नॉट सेम वेरिएबल्स, एक्चुअली दे आर प्लेइंग द सेम रोल, ठीक है। सो रोल उनका सेम है पर वो एक्चुअल में सेम नहीं है। सो दीज आर डिफरेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन भी हमारी सेम है मुझे, और ये देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ आई स्क्वायर आर जूल हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो यहाँ पे वो बीवी स्क्वायर वेलोसिटी डिपेंडेंट लॉस जो है मैकेनिकल ऑसिलेटर में। सर ये नोट करना है? कर सकते हो बच्चे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये पीपीटी अवेलेबल है ऑनलाइन एलएमएस पे भी, और ये वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है जी। सो देन नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होगा बेटे? What is meant by In which we provide external force to make the oscillation possible. So when the damping force is अच्छा another आप force is applied opposite to the damping force, so that there's a normal oscillation and not a damped oscillation. yes, so in nature there is no motion without a damping, ठीक है। सो अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कैसे करोगे? अगर आपने कोई हाई एक्यूरेसी वाला सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो हाउ विल यू विल मेक ए सिंपल डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं मुझे। सो एक डैम्प्ड एसएचएम है आपके पास, इफ यू ऐड एडिशनल जो इसको रिक्वायरमेंट है, जो फैक्टर इसको चाहिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, सो एडिशनल ड्राइविंग फोर्स अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं सच दैट द एडिशन ऑफ दीज टू फोर्सेस विल गिव यू कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एसएचएम, ठीक है। सो ये है आपका, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेटर, ठीक है जी। सो डैम्प्ड एसएचएम, हाँ जी भैया। सर ये ड्राइविंग फोर्स मतलब? अभी आने दो बच्चे मुझे इस पे। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में अगर जितनी इसको लॉसेस हो रहे हैं, जितने लॉसेस उसके रेजिस्टेंस की वजह से या डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, अगर उतने ही एडिशनल फोर्स जिसको हम ड्राइविंग फोर्स भी कह रहे हैं, वो एडिशनल जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करें बाय एडिशनल फोर्स, इसलिए मैं इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल रहा हूँ, ठीक है। या इसको आप एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो, ड्राइविंग फोर्स नहीं बोलना चाहते हो। सो एक्सटर्नली मैं उसको उतनी हेल्प प्रोवाइड कर दूं सच दैट जो डैम्पिंग की वजह से उसके एम्पलीट्यूड में नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो कंपनसेट हो जाए एक्सटर्नल फोर्स से, देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो इसमें हम इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं बच्चे। इसकी डेरिवेशन नहीं है आपको, जस्ट इक्वेशन कंपोनेंट तक ही है आपको इसकी। तो इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं बच्चे। नेट फोर्स एफ एन, इसमें क्या क्या फैक्टर थे? एक तो माइनस के एक्स था एसएचएम वाला, एक इसमें डैम्पिंग वाला भी था, है ना, नेगेटिव फोर्स है, dx by dt वेलोसिटी डिपेंडेंट था। अब अगर मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स डाल दूं एफ नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ये जो था ये हमारा डैम्प्ड था, ठीक है। ये कंपोनेंट सिंपली एसएचएम वाला था, और ये है हमारी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगा क्यों रहे हैं? In order to make compensate the losses due to damping. सर ये एक्सटर्नल फोर्स साइन फंक्शन में ही होगा क्या? बच्चे आपको हार्मोनिक चाहिए ना। अभी आप देखो आपका ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन थी, अगर हम अंडर डैम्प्ड की बात करें, ओवर डैम्प्ड या क्रिटिकल में तो ऑसिलेशन आ ही नहीं रही है। सो इस तरह से ना साइन या कोसाइन फंक्शन, सो आपका हार्मोनिकली तो वेरी कर रहा है, टाइम पीरियड तो है ही उसके पास। तो अगर इसी वे में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो यहां आपको इतना एम्पलीट्यूड चाहिए, फॉर एग्जांपल ए, है ना, तो यहां जो है लॉस हो रहा है इतने एम्पलीट्यूड का, यहां जो लॉस हो रहा है वो इतने एम्पलीट्यूड का। सो अगर मैं कुछ ऐसी फोर्स अप्लाई कर दूं सच दैट कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाए इस तरह से, ठीक है। सर ये
तो ड्राइविंग फोर्स है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूस भी और वेरिएबल एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड आपको चाहिए उसके हिसाब से आपका एम्पलीट्यूड ये एडजस्ट भी कर सकती हो। सो दिस इज एक इंस्टेंस पे लगाए बस, जिससे मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए। इसमें आप समझो कि आपके पास दो वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल वेव्स की टर्म में मैं बात करता हूँ। एक वेव है जो साइन आपकी डैम्प्ड वाली है विद द डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, और दूसरी वेव है आपकी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स वाली। ठीक है, अगर दोनों को आप इंटरफेयर करवाओ, दोनों को सुपर इम्पोज करवाओ, यू विल गेट ए रिजल्टेंट वेव विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, वो आपका रिजल्ट होना चाहिए। सो अगर ये इसमें क्या था कि ये रेड ब्लैक वाली जो है ये डैम्प्ड वाली लाइन थी, ठीक है, और ये जो रेड वाली है ये एक्सटर्नल फोर्स थी। जब मैंने इन दोनों को ओवरलैप किया, दे विल गिव मी SHM। ठीक है, सो इसको मैं फर्दर यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा देता हूँ, md² x/dt²। ड्राइविंग फोर्स को सेम फेज में होना पड़ेगा ना, तभी वो एम्पलीट्यूड को ऑब्वियसली बच्चे, अगर आप आउट ऑफ फेज लगाओ, मैंने इसीलिए आपको वेव्स की एग्जांपल दी ना, कि जब सेम फेज में होगा, सेम टाइम पीरियड में होगा, और जितना एम्पलीट्यूड दिए उतना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, देन ओनली इट विल गिव यू SHM। सो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ मुझे, सो आई विल सिंपली गेट d² x/dt² प्लस k/m x प्लस a/m dx/dt। ठीक है, और इसको F0 ड्राइविंग फोर्स को मैं एक्सटर्नल लिख देता हूँ, F0/m sin ओमेगा t या cos ओमेगा t। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, d² x/dt²। k/m को मैंने क्या पुट किया था, 2r, मैं वही लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशंस, डैम्पिंग फैक्टर, a/m ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी ये वाला a/m यहाँ था, तो k/m को मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट किया था, और F0/m को मैंने कैपिटल F पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। So this is the equation of forced oscillations. ठीक है जी, where k/m is omega naught square, a/m is 2r, r is damping factor, a is any constant, and F0/m is capital F. So आपको यहीं तक करना है बच्चे forced oscillation में, equation of, हाँ जी सर ये ओमेगा नॉट और ओमेगा में क्या डिफरेंस है, मतलब वो वाला ओमेगा कौन सा है जो फोर्स के साथ दिया है? बच्चे ओमेगा नॉट अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो उसका अपना जो उसमें है, कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा आउटसाइड या इंटरनली भी कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा नॉट बोलते हैं। बट अगर आपने उसकी एक्चुअल जो मोशन है, नेचुरल जो उसकी मोशन है, उसको हिंडर कर दिया, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दिया, है ना, कोई एक्सटर्नल चीज लगा के या कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तब उसको आप बोलोगे simply oscillation frequency which is denoted by omega. It is different from natural frequency. मुझे f sin ओमेगा t तो मतलब खुद में भी एक SHM ही है ना ये तो? हाँ SHM है, बट आपको आउटसाइड फोर्स इसलिए लगानी है कि जो हमारा लॉस हो रहा है एम्पलीट्यूड में उसको कंपनसेट करे। SHM होगी, बट अब आपने देखा बच्चे यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ आपका एम्पलीट्यूड है डिफरेंट है, ड्राइविंग फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का, यहाँ उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, सो इट इज कंट्रीब्यूटिंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सो ये SHM तो नहीं हुई ना, सो ये तो सिर्फ कंपनसेट कर रही है डैम्प्ड SHM में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको। SHM ये तब होती अगर इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह जाता। ठीक है, so next we have application of SHM, a damped SHM. तो इससे पहले बच्चे मैं एग्जांपल देता हूं आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फोर्स्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस की टर्म में यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया, आप स्लाइड्स में देख लेना मुझे। फोर्स्ड वाइब्रेशन अकर व्हेन देयर इज पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स। सो आपका जो डाउट था कि ये SHM है या नहीं है, सो इट इज अ पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स। दिस फोर्स मे और मे नॉट हैव सेम पीरियड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सो ये यहाँ पे बोल रहा है कि सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स कितनी लगा रखी है, उससे टाइम पीरियड हमारा कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि टाइम पीरियड भी T is 2π/q था,
है ना। सो ओमेगा नहीं था ये, यहाँ ओमेगा नॉट नहीं था, सो उसकी वजह से हमारा टाइम पीरियड भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और एम्पलीट्यूड तो हमारा चेंज हो ही रहा है। सो इन दोनों को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। सो ये सेम पीरियड वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिव फोर्स कितनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ नोट करना मुझे, इट मींस आपका जो रेजिस्टिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, वो कम है। इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड बिकम्स क्वाइट लार्ज, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है बच्चे वैसे? व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस? जो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए किसी सर जब एनर्जी So the natural or applied frequency same हो जाए। हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह जो हम बोलते हाँ, हैं, वही सेम एग्जांपल कि क्रेस्ट के ऊपर पड़ रहा है या ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है। इट मींस जितनी फ्रीक्वेंसी, जितने नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कोई परफॉर्म कर रहा है, अगर उतनी ही साइकिल एक सेकंड में कोई दूसरा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, उसको आप बोलोगे दे आर रेजोनेंसिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो उसकी हर पॉइंट पे आपका एम्पलीट्यूड ऐड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है मुझे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो इसकी पीक्स जो है एक पॉइंट पे आ रही, ए पॉइंट पे, और जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो भी एक ही पॉइंट पे आ रही, बी। ठीक है, सो दे विल ऐड अप। ठीक है जी। The sharpness of resonant peak depend upon damping, obviously. If damping is small, ये जो A वाला है, this one, it can be quite sharp. If damping is large, आपने यहाँ पे देखा ये जो broad होना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं full width at half maximum. Full width at half maximum, जितनी पीक आ रही है उसका हाफ है ना, और उस पे ये width कितनी है, ये ज्यादा हो जाएगी अगर आपकी damping force ज्यादा है। यहाँ देखो full width at half maximum, यहाँ कम है। ठीक है, सो इफ डैम्पिंग इज लार्ज इट इज लेस शार्प, सो ये ब्रॉड होती जाएगी, रहेगी तो गॉसियन ही बट थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, लाइक डैम्प। हाँ जी सर ये शार्पनेस मतलब? शार्पनेस मतलब आपकी जो अगर लाइट की फॉर्म में देखें मुझे, तो आउटपुट स्पेक्ट्रा लाइट का इस तरह आता है इंटेंसिटी का, है ना। अगर मैं यही लेजर ले लूं, इंटेंसिटी वर्सेस अगर वेवलेंथ, तो अगर ये लेजर ले लूं तो वो इस तरह से होगा। किसी एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट लो ना, तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बट अगर जनरल व्हाइट लाइट लोगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सो वही है शार्पनेस का मतलब कि एक यूनिट पॉइंट की फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे उसका मैक्सिमा आएगा, और अगर आपने डैम्पिंग फोर्स लगा दी इट मींस उसका जो मैक्सिमा है वो ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा सिंगल पॉइंट यहाँ पे था, ए में सिंगल पॉइंट था, वो यहाँ बी में आके ये इस तरह के दो विड्थ आ गई थोड़ी सी, यहाँ भी वो मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ भी हल्का हल्का मैक्सिमा है। ठीक है, सो विड्थ ब्रॉड हो गई। ओके सर। ठीक है जी। अब अच्छा इसकी एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये दो डायग्राम फिगर्स बनाए हैं मुझे, फिगर 1 एंड 2, दीज आर द फिगर ऑफ सेम ब्रिज। ठीक है, सो टर्बुलेंट विंड्स सेट अप टॉर्जनल वाइब्रेशन इन टकोमा नैरो ब्रिज। सो ये ब्रिज का नाम है। इसकी हर एक जो हमारे पास बिल्डिंग है या हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिससे वो ऑसिलेट करे। जब आप फोर्स लगाओ तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर सकता है, जिसको उसकी स्ट्रक्चर अलाउ करती है। ठीक है, सो वाइब्रेशन कॉजिंग दिस ब्रिज टू ऑसिलेट एट ए फ्रीक्वेंसी नियर वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर। सो उस वाइब्रेशन, जो तूफान आया उसकी वजह से जो वाइब्रेशन हुई इस ब्रिज में, वो अगर किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी एक से ज्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ भी रेजोनेंस में आ गई, दैट विल कॉज द कोलैप्स, द रेजोनेंस कंडीशन लेड टू कोलैप्स ऑफ दिस ब्रिज। सो ये ब्रिज यहाँ पे ब्रेक कर गया। ठीक है, इसीलिए जैसे कई बार परेड में मार्च पास्ट होता है, एंड इफ द पर्सन, द पुलिसमैन और आर्मी मैन, दे आर पासिंग थ्रू ब्रिज ऑफ फुट मार्च करते हुए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप जो है सेम फ्रीक्वेंसी में एक साथ फुट नहीं रखना, अदरवाइज इट में कोलैप्स। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी स्ट्रक्चर की और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो बराबर हो जाएंगी, तो आपका एम्पलीट्यूड है, अदरवाइज एक आदमी के पैर रखने से ब्रिज नहीं टूटता, बट इफ और अगर उसपे से 100% भी 1 by 1 पास कर जाए, देयर इज नो इशू, बट अगर वो 100% एक साथ फुट अप एंड डाउन करते हैं, so that will add up the amplitude of that particular force, वो और ज्यादा violent हो जाएगी, that will lead to the collapse of that particular structure. So this is the forced oscillation and particularly the resonance. ठीक है जी। So next है हमारे पास इसमें बचे
examples of damped simple harmonic motion. This is eddy currents, examples of damping. So ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है eddy currents. So eddy currents क्या होता है? एडी करंट्स ये आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा। से करंट जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो फिर हाँ उससे जो जनरेट होता है करंट। सर वॉल्स क्रिएट होती हैं। यस, सो हम इसको पर्टिकुलरली एग्जांपल देके बताते हैं बच्चों। सो एज वी नो, सर नहीं पढ़ा मैंने, अरे भाई सुनो तो सही अनीश। सो एज वी नो एन ईएमएफ एंड ए करंट are induced in a circuit. So ध्यान देना मुझे, EMF वोल्टेज है, by changing the magnetic flux. ठीक है, so magnetic flux change होने की वजह से आपके पास सर्किट में EMF भी आता है और करंट भी आता है. In a same manner, circulating currents, which are called eddy currents, so are induced in bulk piece of metal moving through magnetic field. अगर आप फॉर एग्जांपल कॉपर की प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो उसके अंदर, उस कॉपर की प्लेट के अंदर ये सर्कुलर फॉर्म में करंट्स आ जाएंगे. ये लेंजेस लॉ भी है मुझे, लेंजेस लॉ तो पढ़ा होगा आपने. सो ये उसकी वजह से भी है. सो जो मोशन इसको क्रिएट कर रही है उसी को अपोज करता है एडी करंट्स. सो दिस इज द एग्जांपल कि ये अगर मेरे पास मेटल शीट है, ठीक है, दिस इज माय मेटल शीट एंड दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ एंड साउथ पोल. These are two faces, north face and south face, and this metal sheet is attached to a pivot and moving to and fro inside the magnetic field. ठीक है, ये जो magnetic field है इसके अंदर, इसमें मूव कर रहा है. So it will create eddy currents. So इस फॉर्म में छोटे छोटे जो सर्कुलर फॉर्म में eddy currents क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये करते क्या है? So इसकी एक डेमोन्स्ट्रेटेड क्या हुआ है? Allowing a flat copper plate attached to the end of a rigid bar to swing back and forth through a magnetic field. अब क्या होगा? As the plate enters the field, जैसी प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी, the changing magnetic flux, number of lines per unit area, magnetic flux induces EMF in the plate. So इस प्लेट में induced EMF आ जाएगा, which in turn cause the free electron in the plate to move. फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे and producing the swirling eddy currents. So eddy currents बजाय अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो इसकी डिटेल पढ़ लेना आप. एडी करंट्स सर्कुलर करंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसी में जनरेट होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉपर प्लेट. ठीक है, सो जैसे ही आपने इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, सो स्वर्लिंग इफेक्ट इसमें आएगा, एडी करंट्स. ठीक है, ये जिस मोशन में, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कॉपर शीट जा रही है उसको अपोज करेगा, सो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा. ठीक है जी. सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस नेचर. द ब्रेकिंग सिस्टम ऑन मेनी सबवे और रैपिड ट्रांजिट कार्स मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एडी करंट. ठीक है जी. अब इसमें क्या करते हैं, ये आपको डायग्राम विजिबल है मुझे कि टायर के ऊपर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो वो रुकेगा कैसे? जैसे ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन है और उसको आपको रोकना है तो रबर पैडिंग से तो वो रुकेगी नहीं. सो यू हैव टू अप्लाई द फील्ड. सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट attached to the train is positioned near the steel rails, जो उसके wheels हैं उसके surrounding में. The braking action occurs when a large current is passed through the electromagnet. जैसे ये जो electromagnet है, जैसे ही आपने इसमें large current pass किया, field generate होगी. The relative motion of magnet and rail induces eddy currents in the rails, and direction of these current produce a drag force on the moving train. So जो जिस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर व्हील मूव कर रहा है तो एडी करंट्स किस डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो जितना आप फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाओगे, उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतनी ही जल्दी आपका व्हील जो है उसके अगेंस्ट एडी करंट्स एक्ट करेंगे और उसको स्टॉप करेंगे. ठीक है, सो ये जो मूविंग व्हील है, यहाँ पे जो ये रस्टी व्हील दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर लगा रखा है. सो जैसे ही एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, ये हाईली रोटेटिंग व्हील जो है स्टॉप कर जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एज ए सेफ्टी मेजर, सम पावर टूल्स लाइक rapidly spinning blade for cutting some structure, some powerful tool use eddy currents.
है एप्लीकेशन वही है, आपको हाईली स्पिनिंग ब्लेड, हाथ से तो नहीं रोकोगे ना उसको, so you apply the field which produce eddy currents and eddy currents oppose the motion which is producing it, Lenz's law के according. So Lenz's law था या V या E is equal to minus d phi by dt, इसको small e भी लिखते हैं कई बार, ठीक है. So this is the application of damped simple harmonic motion. इसमें क्या कर रहे हो आप, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहे हो by including the resistive forces, dissipative forces. ठीक है जी. So बच्चे, this is all about your oscillation and waves. So one unit is completed. बच्चे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इसमें. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर रेफरेंस बुक कौन सी यूज कर रहे हैं? बच्चे you can use NK Verma book, engineering physics by NK Verma. You can use HJ Payne book by HJ Payne, or you'll send your email ID on my email. I will forward you the soft copy. 2 soft copies I have, HJ White and Payne book. So I have the book of engineering physics from 2 different authors. You can refer those books as well, but standard book is engineering physics by NK Verma. It includes all the topics of your syllabus. Okay, thank you. Sir, Sir, soft actually copy I have